मेरे अंदर एक चीज़ हो चुकी है कि अब क्रिएटिवली भी एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, तो जब कोई मेरा प्रोजेक्ट नहीं होता कि मैं एक सीन में कॉफ़ी में बात कर रहा हूँ, सडनली नेक्स्ट सीन में मैं किस कर रहा हूँ, मैं वो प्रोजेक्ट उठाऊंगा ही नहीं अगर वो शो या सिमिलरली उनके उस पर जैसे हुआ होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेकर्स ऑफ द शो, आई एम 100% श्योर कुछ एक होगा क्योंकि लगा होगा यार स्टोरी में चेंज करना है, लास्ट मिनट चेंज कर दिया, एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्वागत है अक्षुन आपका टेली चक्कर पर। हाय मुकेश, हाउ आर यू? हाय स्वप्निल, व्हाट्स अप? जी, सबसे पहला सवाल जो हम पूछेंगे, हाउ डज इट फील 12-14 घंटे रेगुलर काम करना कुछ महीनों तक और फिर एकदम से अब आपको आदत हो रही होगी उस टाइम पर उठना सोना, कैसा महसूस हो रहा है अब? Mukesh, me as Akshan, I have worked in the industry for 7 years. Being an assistant director, I used to work for 24 hours non-stop. And I have too much energy, so it's good that it's getting channelized somewhere. Good. And I've done theatre also. So yes, working 24/7 as Abhishek Diwan and now coming back to Akshan's avatar. Even every single day when I used to come back home, I used to switch to Akshan. And I think that 7-8 years of my experience, because I used to do workshops also still, I already had that thing within me to switch and on. So right now also I'm good. I've become Akshan again, but those moments were a little bittersweet, as in a good way. That I got to be a certain way. I'm happy. I did 41 episodes. I bid that adieu, a farewell, and then I bounced and I came back to my character, which is Akshan. And now I'm looking forward to more projects that are coming up. So henceforth, everything was like a smooth transition. I won't say that it's a hectic change. It's all good. It's genuinely all good. पर ऐसा है कि अब इंडस्ट्री ने आपको एज एन एक्टर एक्सेप्ट कर लिया और आपको एज एन एक्टर्स ऑफर्स आने लगे हैं, शुरू हो चुका है चीजें? जी, ऑफर्स तो जब मैं शो कर रहा था तब भी आ रहे थे, बिकॉज आई वोंट लाई टू यू, आई हैव ऑलवेज बीन गिव ऑडिशनिंग. आई नेवर स्टॉप्ड ऑडिशनिंग इवन व्हेन आई वाज शूटिंग, because that's more like a rehearsal to me in front of camera. Yes, I'm shooting in front of the camera, I get it. At the same time, rehearsing is very important. If I'm playing Abhishek Diwan, I get so much into the skin of Abhishek Diwan, the way I created it in my own manner, with all due respect to the new Abhishek Diwan that Akshit has created now, which again has a flair to it, that individuality. And the reason I'm talking about individuality is because when I'm auditioning, I'm playing certain characters for that particular instant. So I never stopped that. Because of that, I also got connected to some advertisements or some shows or some films. And getting shortlisted also was a way of me, okay, fine, I still got it in me. Like, how do I say it? It's not a validation, but it's something that I always find curiosity or fun, and that's very intriguing for me when I do that. जैसे आपने बताया कि ये शोज चल रहे थे, आपने 41 एपिसोड किए, when you got to know कि अब आपको रिप्लेस किया जा रहा है या अब एक क्रिएटिव कॉल लिया जा रहा है, अब अभिषेक को अलग दिखाना है या ऐसा कुछ, आपका रिएक्शन क्या था और किसने आप तक ये खबर पहुंचाई? कैसे आप शूट कर रहे थे या क्या था? With respect to your question also, it's a good question. I don't want to name anyone because I don't like naming people. But I already knew about it. I saw that thing happening and I was okay with it. My reaction was genuinely this. Super. I hope the story is good. The story needs to be intact. At the end of the day, I'm playing that character for the good of the story. So when this news came to me, I was like, perfect. So I was like, Akshan had to live the character of Abhishek Diwan for said 41 episodes. And I really hope that I did justice to the character as per the audience point of view or the maker's point of view. And let me actually bring one particular point to the notice. कि जो जलद सर हैं हमारे डायरेक्टर, वो ना बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं that I've worked with and I've had the honor to work with. वो ना कोई शॉट ओके नहीं करेंगे अनलेस आपने वो कैरेक्टर को हिट नहीं किया मार्क पे. तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, आई एम वेरी कंटेंट और मेरे लिए परफॉर्मेंस ही मैटर करती है. तो अगर मेरी एक्टिंग नेचुरल आई, परफॉर्मेंस निकल कर आई और सर ने ओके की है, मतलब आई एम होम. और वो लोग कॉम्प्लीमेंट्स में बोल रहे हैं, ईमेल्स में बोल रहे हैं, तो आई एम होम. आई एम हैप्पी दैट वे. उस हिसाब से मैंने इसको लिया भी ऐसे ही और मैं अभी भी ऐसे ही सोच रहा हूँ. द वे थिंग्स हैव हैपेंड कि मेरी लाइफ उतनी ही थी. अब ये मैंटल रिले की तरह जैसे पास करते हैं और वो अक्षित लेके जा रहे हैं आगे. एंड आई सॉ हिज एपिसोड कल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. आई वाज लाइक, अच्छा, वाओ. लाइक मैंने अभिषेक को जैसे सोचा था मैच्योरिटी में, इसने उसमें कुछ एक नया फ्लेवर डाला है. इट्स हिज इंडिविजुअलिटी. मुझे बहुत कूल लगा वो. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आज के एपिसोड का मैं वेट कर रहा हूँ. एंड आई टेल पीपल ऑल्सो, जो भी
लोग आसपास हैं, I'm like watch it, it's fun, it's that curiosity that keeps me also going. जैसा आपने कहा कि वो शो चल भी रहा था और आपको ऑडिशंस आ भी रहे थे, कुछ जब भी कोई ऑडिशन आता है जी, तो आप कैरेक्टर का ब्रीफिंग कैसा लेना प्रेफर करते हो? लाइक आर यू ओपन कि कैरेक्टर अच्छा हो, फिर चाहे वो ग्रे हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, हीरो ही होना चाहिए, या ऐसा कुछ आपका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? so Mukesh, being an actor, I've always decided कि जो कैरेक्टर मुझे आएगा, it needs to make a difference in the story, whether it's negative or positive. I tend to get positive auditions always, maybe because of the look, I'm not sure. But as an actor, I'm ready to do even a serial killer, even a character who like switches, schizophrenic, या कोई एक दिमागी संतुलन है, कोई चीजें. I'm open to doing everything because at the end of the day, I want to challenge myself. उसके हिसाब से जब ऑडिशंस आते हैं, मुझे जो ब्रीफ मिलता है, मैं बोलता हूँ आप मुझे कहानी पूरी सुनाओ और इस किरदार को उस कहानी में रखो, और ताकि मैं अपने हिसाब से देखूं कि किरदार कितना फर्क डाल रहा है उस कहानी में, कितना आगे लेके जा रहा है. बिकॉज मुझे वैल्यू एडेड कैरेक्टर्स चाहिए जिनको मैं परफॉर्म करूं. अब वो जो माध्यम होता है वो आपका मीडियम टीवी शो है, ओटीटी है, फिल्म है, चाहे एक एड भी है, वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ एड में, कुछ भी है. I want to add value and I want to give back to the cinema. और behind the camera काम करने के बाद से मेरे अंदर एक चीज़ हो चुकी है कि अब क्रिएटिवली भी एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है. तो जब कोई मेरा प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई शो नहीं होता, जैसे ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं, रिप्लेस, एग्जिट, टर्मिनेट, जो भी, अब वो स्टांस कि उन्होंने क्यों लिया, मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है क्यों लिया. मैं समझता हूँ मेकर्स को. तो वो जर्नी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भगवान ने जैसे भी करा दी, खुदा ने जैसी भी करवा दी, मैं कर आ गया. और अब मुझे वो अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा कुछ सोच रहे होंगे, और अब जब मैं देखता हूँ हाँ यार इट मेक्स सेंस, तो मैं ग्रेटफुल आ जाके एट द एंड ऑफ द डे यही हूँ. चाहे मेरा थिएटर ग्रुप था, चाहे मेरी एक फिल्म थी जो मैंने रॉकेट की ग्रे और बार्नस्टॉर्म के साथ, चाहे जो भी रिलीज होगी ओटीटी पे, चाहे मेरा ये प्रोजेक्ट जो मैं करने वाला हूँ उनका नाम नहीं लूंगा, चाहे ये जो मैंने शो किया, तो मैं राजश्री और कलर्स का ग्रेटफुल हूँ इस टाइम पे, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आई गॉट टू परफॉर्म. उससे ज्यादा कुछ नहीं है यार. वो 40-41 एपिसोड्स दैट आई गॉट टू परफॉर्म, दे आर देयर, दे विल ऑलवेज बी देयर, दे हैव बिकम इमॉर्टल. तो वो किसी को कभी भी देखना, दे विल ऑलवेज वॉच इट. एंड इफ आई हैव टू रिविजिट, आई विल रिविजिट. कभी मैं कोई किरदार करूँ आगे जाके, जैसे आपने पूछा किस तरह के किरदार होंगे, कोई एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव भी आ गया, क्या पता मुझे अभिषेक दीवान का एक वर्जन डालना हो. मेरे मेंटल ट्रेजर टेस्ट में तो वो है ही. आई विल पिक अप वन थिंग, लाइक अभिषेक दीवान यूज्ड टू डू दिस, that I do it in real life. I've taken it from my father actually. तो वो चीज़ करना, ये करना, that's a lot like him. But accessories मैं life में नहीं पहनता, but it used to be him. But now somewhere I am open to wearing neck chains or a bracelet or a watch or something. So मतलब that's how I look at things, and that's how these auditions also I look at. नेक्स्ट प्रोजेक्ट ओटीटी पर है या टीवी पर है? इतना तो बता ही सकते. ओटीटी पर है. हाँ जी, क्योंकि टीवी पर तो स्टोरी लाइन में चेंज करना मेल कैरेक्टर के लिए किस हद तक पॉसिबल है आज का जो टीवी है? देखिए मैं जेन्युइनली, क्योंकि टीवी मेरे लिए नया था, मैं बहुत फर्स्ट टाइम आई हैव कम इनटू टीवी, एंड मैंने देखा जिस हिसाब से चेंजेस हुए हैं स्टोरी में, ये वो ऑन द विम हुए हैं, जिस तरह से लोगों ने स्टोरीज को बनाया है. आई फील एज इट डिपेंड्स ऑन द मेकर कि वो कैसे, उनको क्या सही लगता है, और उस चीज को मैं क्वेश्चन नहीं करता. बट हाँ, स्टोरी को चेंज तो कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वे में कर सकते हैं. तो टीवी के माध्यम में जहां तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से सब जेन्युइन था. जिस तरह से चेंज हुआ, जो ट्रांजिशंस आई, मेरे हिसाब से स्मूथ है. तो मैंने अभी तक वो फेस नहीं किया है जहां पे नहीं यार ये क्या हो गया स्टोरी में, ऐसा कोई पॉइंट भी आए. सो आई हैव नॉट फेस्ड दैट पॉइंट येट अभी तक. सो लेट्स सी. जी, ना ओटीटी में, ना जब मैं एडी था फिल्म में, तब भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया. मैंने चेंजेस देखे हैं स्क्रिप्ट्स में, बट मैंने कभी नहीं सोचा इलॉजिकल है. बिकॉज मैंने हमेशा, ये मैं लाइफ में भी थोड़ा उस वे में ही सोचता हूँ. आई ट्राई टू सी इट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. इवन इफ यू आर आस्किंग मी एनी क्वेश्चन राइट नाउ, आई विल अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाई यू आस्किंग मी दैट. और एक सबकॉन्शियस चीज है इनकलकेटेड विद इन मी सिंस चाइल्डहुड. सो आई एम ऑलवेज कांग्रेस विद द फैक्ट्स एंड सर्टेन क्वेश्चंस कि किस तरह से पूछें. तो कोई स्ट्रेस नहीं है उस वे में. तो आई हैवंट फेस्ड दैट आंसरिंग योर क्वेश्चन बट येट. यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ओटीटी. जी.
आप कितने ज़्यादा बतौर एक्टर ओपन हैं स्किन शो चीज़ को लेकर? क्योंकि आजकल ओटीटी बिकॉज़ सेंसरशिप नहीं है, जी। तो अपने कंटेंट को गेयर अप करने के लिए बहुत चीज़ें ऐसी आ रही हैं, आपने देखा ही होगा। सो बतौर एक्टर आप कितने ओपन हैं? आर यू वन ऑफ दोज़ एक्टर जो अगर लिख कर आ गया तो आप क्वेश्चन करोगे कि इतना स्किन शो क्यों सर? मेरे कैरेक्टर को ये ज़रूरी है और जब डाइजेस्टिव रीज़न मिलेगा देन यू विल गो फॉर इट, या अगर लिखा है तो यू विल गो फॉर इट? सी, स्किन शो की जब बात आती है, इट्स अ टैबू। पहली बात तो व्हेन आई सी इट, लॉट ऑफ पीपल से यार ये क्यों है या फिर ये इस वे में है, पीपल सी इट इन अ डिफरेंट लाइट। टू बी ऑनेस्ट, मी पर्सनली, मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा, बिकॉज मैं लोगों के ओपिनियंस पे कमेंट नहीं करता, ना अपने पर्सनल ओपिनियंस वॉइस आउट करता हूँ क्यों होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट एज अक्षत, एज एन एक्टर, when I look at certain scripts and all, and I see certain intimate scenes written in the script, I first try to break it down कि पूरी स्टोरी की जर्नी में जो ट्रैजेक्टरी है इस कैरेक्टर की, तो वो कितना इंपॉर्टेंट था, कहाँ था, क्योंकि जिसने लिखा है सोच के लिखा है। करेक्ट। एक बार एक लिखी हुई स्क्रिप्ट जो पहले आती है, उसके बाद कमर्शलाइज होती है, वो कमर्शलाइज के बीच की जो जर्नी है, पहले मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। फिर यस, आई एम दैट एक्टर हु विल आस्क अ क्वेश्चन कि सर इसमें इतना क्या है, क्या आपको लगता है इसको कैसे और कर सकते हैं। इट्स नॉट बिकॉज आई एम नॉट ओपन टू स्किन शो, इट्स जस्ट दैट इट शुड बी लॉजिकल। इफ यू आस्क मी इन अ सीन कि मैं एक सीन में कॉफी में बात कर रहा हूँ, सडनली नेक्स्ट सीन में मैं किस कर रहा हूँ, why has it happened? Was my character a little Casanova types? Hence it makes sense. Or were they meeting after 13 years, you say, but they still had that spark going within them. So एक डायरेक्टर का ना एक विजन होता है, राइटर के विजन की को रिस्पेक्ट करते हुए जो वो बनाते हैं। स्पेशली अगर डायरेक्टर राइटर ही हो तो उनका विजन नेक्स्ट लेवल बन के आता है, शोज में, फिल्म्स में, आपने देखा होगा। करेक्ट। उसी तरह से डायरेक्टर ने अगर वो राइटर की चीज को समझ लिया है और अब वो कट टू यहाँ पे पहुंचे, आई एम 100% श्योर वो ऑलरेडी पूरे लार्जर पिक्चर में ऐसा दिखेगा आपको कि आपको लगेगा वाओ इट मेक्स सेंस। यू वोंट इवन थिंक कि ये एक्टर स्किन दिखा रहा है, आपको बस लगेगा फिल्म चल रही है। फिल्म चल रही है, एग्जैक्टली। दैट्स वन थिंग जो मैं गूज़बम्स आ गए बताते हुए, बट दैट्स जस्ट वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन लॉट ऑफ फिल्म्स एंड एक्चुअली मैं ओटीटी में भी काफी, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट मैंने काफी जगहों पे देखा है ना, आई एम लाइक यस यार ये काम करना है, ये चीज करनी है। मैं खुद भी एक फिल्म लिख रहा हूँ, वो थोड़ी रोम कॉम एक्शन टाइप थोड़ी मैं लिख रहा हूँ खुद से। वो मेरा एक वेंचर है जो मैं मन है मेरा, और मैं वो करता हूँ जो मन करता है। सिमिलरली जैसे आप शोज की बात करें तो मनपसंद की शादी का जब कॉन्सेप्ट आया था, मुझे एक्साइट किया उसने। वाओ यार क्या कैरेक्टर है, परफॉर्म कर, दिस इज अभिषेक दीवाना। वाओ यार क्या कैरेक्टर, परफॉर्म करते हैं क्या, यादव चाचा, ऑल दीज कैरेक्टर्स व्हेन दे वर देयर, आरोही, दीज कैरेक्टर्स दैट दे वर देयर, ये चीजें जो थी ना काफी दिल से आई बिकॉज उन्होंने मुझे एक्साइट किया। अब अगर आप मुझे बोलो कि यार अक्षुन एक कैरेक्टर है जो परफॉर्म करना है और वो दिल से नहीं आया मेरे, मैं वो प्रोजेक्ट ही नहीं उठाऊंगा। सो स्किन शो की जहां तक बात आती है, मैं वो प्रोजेक्ट उठाऊंगा ही नहीं अगर वो शो या स्टोरी ने मुझे एक्साइट नहीं किया। स्किन शो वोंट बी अ क्लॉज फॉर मी टू रिजेक्ट एनीथिंग, इज व्हाट आई वुड से। जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चंक वो ये होगा कि यू वर पार्ट ऑफ फिल्म्स आल्सो, यू नो, हाँ जी, पर्दे के पीछे, देन यू डिड टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम, और जितना हमने सिनेमा पढ़ा है, मैं खुद सिनेमा स्टूडेंट हूँ, डायरेक्टर ही कैप्टन ऑफ द शिप होता है ऑलवेज ऑलवेज। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू किया जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने टीवी किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि डायरेक्टर का तो यहाँ चलता ही नहीं है। क्या यहाँ तो टीवी शो किया ना? हाँ, ओके। वो फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने टीवी किया, उनको पता चला कि यहाँ डायरेक्टर का तो चलता ही नहीं, यहाँ तो ईपी का चलता है। वो डिसाइड करता है कैसे कौन छुट्टी पे जाएगा, अगला सीन कौन सा लगेगा। डायरेक्टर को पता होता है कि एक्टर का मूड है, तो अगर इमोशनल चल रहा है तो इमोशनल निकाल दो। पर अब ईपी का रोल आ गया है, तो आपने इस शूट के दौरान कभी ये फेस किया कि नहीं यहाँ पे डायरेक्टर को अब ईपीज ने ओवरकम कर लिया है या ऐसा कुछ? Mukesh, I'll be honest, I haven't faced it. First, answering your question. Secondly, I have a viewpoint on this that it depends from person to person also, so many times. Because my director Jalat sir, he's incredibly talented. He's so talented that he gives you prompts of if this has happened, why has it happened, why it should happen this way, and these things. There was no strong arming going on when I saw it. And in that show, if it had happened, मे बी वो मेकर्स का कुछ एक वो होगा और डायरेक्टर ने शायद उस
पॉइंट तक पहुंच गए होंगे कि ठीक है जो करना है करो. Could have been, कुछ भी हो सकता है. अब वो जो इंट्रिकेसीज होती है ना, वो इधर भी क्या थी मुझे कभी पता नहीं चली, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूँ. ये स्क्रिप्ट है मेरे हाथ में, मैं ऐसे रहा हूँ ब्रो. मैं सेट पे ऐसे आया हूँ, परफॉर्म ठाक अभिषेक दीवान, लेट्स गो. हमेशा ऐसे रहा हूँ. दैट्स माय पर्सनल हाउ आई हैव बीन ऑलवेज एंड हाउ आई एम राइट नाउ आल्सो, बिकॉज राइट नाउ जैसे मैं सेट से आ चुका हूँ, सब खत्म हो चुका है. नाउ आई एम वाचिंग अभिषेक दीवान. अब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड. आई एम वाचिंग इट और मैं अपने उस पे फोकस कर रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है. सिमिलरली उनके उस पे जैसे हुआ होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेकर्स ऑफ द शो, आई एम 100% श्योर कुछ एक होगा, क्योंकि लगा होगा यार स्टोरी में चेंज करना है, लास्ट मिनट चेंज कर दिया, एक्सपेरिमेंट करते हैं. बिकॉज वन थिंग इज, मैंने हर माध्यम में, मैंने जैसे फिल्म की थी जो भी रिलीज होगी रॉकेट, हर फील्ड में जो मैंने काम किया, आई रियलाइज टीवी इज द हार्डेस्ट. व्हाई इज बिकॉज यू गेट टू लिव द कैरेक्टर सेम डे. यस, यू गेट टू बी इन द कैरेक्टर, बट कितनी बार क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप उस चीज से बोर हो जाओ, अनलेस मोनोटोनस हो गया. सो अनलेस वो मुझे एक्साइट, यही रीजन है कि अनलेस मुझे कोई चीज एक्साइट करे मैं नहीं करूंगा. ये हम थिएटर से हैं, जैसे आपने बताया आपने फिल्म्स पढ़ी हैं, ये सब पढ़ा है. सो हम क्यों वो थिएटर एक प्ले ही साल करते हैं, वो एक्साइट कर रहा है. कैरेक्टर में क्या नया कर दूं, हर बार नया करने का मौका मिलता है. इसमें डूइंग इट आई रियलाइज दैट टीवी के सामने आई वाज डूइंग इट, फर्क यही था, मैं कर थिएटर ही रहा था. कैमरा सेटअप से तो टेक्निकली समझना पड़ा. एज एन एडिट हेल्प्ड मी. मार्क्स क्या मारने, मार्क्स और लाइट तो आप परफेक्ट ले रहे थे, वो तो मैंने भी देखा कैसे है. वो समझ आ गया. एंड देन वो थिएटर से वो चीज हेल्प की, और एडी ने वो हेल्प कर दिया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंस. कितनी बार ऐसा था, सदा सर थे डीओपी, वन ऑफ द फाइनेस्ट डीओपीज आई हैव सीन, एंड अ ग्रेट गाय. सो मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू बी, ये कैमरा है, लेंस क्या, ओके, शांति में खड़ा हो गया, तो पता चल जाता था कि कितना घूमना है, कितना कटना है. बट एट द सेम टाइम डज नॉट मीन दैट आई एम दैट एक्टर जो अगर पता है इतना दिख रहा है तो मैं इतना एक्टिंग कर रहा हूँ. नहीं, मैं नीचे भी कर रहा हूँ, बिकॉज आई फील लाइक मूविंग व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग. आई नीड माई बॉडी टू बी मूविंग. अगर मुझे पता ज्यादा नहीं मूव कर सकता, इतना ही चाहे मूव करूँ, आई बी मूविंग दीज थिंग्स, आई हैव टू स्टे इन द कैरेक्टर. आई अंडरस्टैंड दिस कैमरा, बट आई डोंट वांट टू lose out on the naturalness. That makes you monotonous also for the audience. That's what I feel. So yes, it's been lovely. You're carrying the name really well on your shoulders. I loved being here, and the entire chat session, the conversation that we had, I loved it. It was not like an interview. It was like I was chatting with my friend. It's very good. Thank you so much for having me, and I hope to see you soon again. And Mukesh, theatre. Yes. Yeah. And we wish you a very best of luck. Thank you so soon much. Let's meet with your new project. For sure. OTT पे रॉक करने वाला. For sure. Thank you. Hi, this is Akshan Mahajan. You're watching me on Tele Chakkar Live. And I'll see you guys soon. Next time, same place, same time.